Let us start this. So, in explaining the concept of pediplanation, L.C. King combined the ideas of Davis, Planck, and Wood with his own elaborate. So, he written कि according to L.C. King, all the four elements are formed in standard slope, that is summital convexity, good, free face, then rectilinear and basal concavity. So this is the summit convexity, this is the free fall, this is basically free fall. ठीक है, आप यहाँ पे फेस जैसा बना हुआ है ये फ्री fall है नहीं है. Then rectilinear and then basal concavity. Then Yes, sir. Free face. the complete formation of any slope development. Yeah, the complete formation of any slope depends on local conditions, strong bed, relief. If any of two absent, then free face and debris slope would not form, and in such conditions, convexo-concave hill slope is formed. ठीक है, good. पहली चीज है डायग्राम बहुत अच्छा बनाइए. डायग्राम इज वेरी गुड. सर ये तो कॉमन डायग्राम है. हाँ, कॉमन है, लेकिन बात तब भी आती है कि जो है कितना अच्छे से कोई बना पा रहा है. आजकल प्रॉब्लम यही है कि लोग कॉमन डायग्राम्स बहुत अच्छे से नहीं बना पाते हैं. ओके, तो डायग्राम्स आप अगर एफर्ट ले रहे हो तो ऑब्वियसली वी हैव टू अप्रिशिएट दैट थिंग, भले वो कॉमन ही क्यों ना हो, राइट. Then King theory of hill slope is related to the formation of peneplain, which is taken from the concept of pediment of Sir Davis, and Sir King stated that the peneplain is the result of two processes: scrap retreat and pedimentation. As shown in figure 1.2. Okay, good. Then the concept of parallel retreat, the important one, right? The concept of parallel retreat of scrap is taken from Sir Planck's theory. Planck used the example of steep rock cliff for the development of hill slope. The summit of these rock cliff is plain. At the base of cliff slope, stream flows which neither erode nor deposit but transport the weathered material. ठीक है, okay. Then at a certain time, due to weathering of materials of same thickness from all part of cliff which lose and fall on the base which is moved by the stream. This para is थोड़ा सा वाला क्लियर नहीं है, स्लाइटली नॉट क्लियर. क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? At a certain time, due to weathering of material of same thickness from all parts of cliff which loosens and falls on the base and which is moved by the stream. With the advancement of time, sir. Hello. हाँ हाँ बोलो. With the advancement of the time, the rock material present there is मतलब weathering उसमें शुरू हो जाता है और वो फिर जो है सो मतलब लूज होने के बाद वो फिर जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू स्टीम के थ्रू से मूव होने लगता है स्लाइटली. हाँ, तो यहाँ पे लिखो which loosens, ठीक है, and Yes, sir. fall on the base and is further moved by the stream, right? Okay, okay, हमेशा मैंने sir. आपको बोला है कि जैसे जब भी आप आंसर लिख रहे हो ना, तो एक फ्लो जो है कॉपी एग्जामिनर का एग्जाम जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसका फ्लो नहीं टूटना चाहिए पढ़ने में, Yes, sir. राइट. Yes. तो फ्लो टूटता है तब तब वो अलर्ट होता है कि भाई ठीक है यहाँ पे कुछ और भी गलती हो सकती है, राइट. तो इसलिए क्या है कि जितना आपने एक फ्री फ्लो लैंग्वेज आपने लिखी है, जितने कहते हैं ना कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखी है, एकदम फ्लो में अपनी चीज़ों को लिखा हुआ है, तो ये क्या है कि बहुत जल्दी उस चीज़ों से वो निकल जाता है फिर यहाँ से, Yes, sir. राइट. Yes, sir. हाँ, कोई बात नहीं. चलो, इन दिस वे ड्यू टू सम
Due to same rate of weathering and transportation of weathered material, parallel retreat of slope appears. Very good. जैसे ये एकदम बहुत क्लियर कट पैरेलल retreat को एक्सप्लेन किया है, राइट? और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अदरवाइज पैरेलल retreat को लोग इतना घुमा फिरा के लिखते हैं, तो ये एकदम करेक्ट लिखा है चीजें. देन according to Sir L.C. King, in the early stage of slope development, there is parallel retreat of scarp towards back due to weathering. The parallel retreat of scarp controls the development of hill slope. And this here explained by this diagram again. और यहाँ पे इंसलबर्ग का अपने डायग्राम ले आए. ओके, सो गुड, डायग्राम इज गुड. पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया आपका भास्कर. हेलो. बिल्कुल, आपकी एक बहुत अच्छी चीज है कि यू आर मेंटेनिंग योर कंटिन्यूटी. ठीक है, सो मतलब लाइक दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट. एंड जैसे मिल्खा सिंह मूवी में आपको याद होगा, उस जब वो जाता पाकिस्तान में खेलने के लिए और वो कहता है कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मैच होगा, बोलता है ना ऐसा कुछ उसको. तो मिल्खा सिंह कहता है वहां पर कि भागूंगा भी उसी तरीके से कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी मैच है. हाँ, सही बात. हाँ, वो बोलता भी ऐसे ही है, मतलब वो उसको ऐसे ही हम भी भाग रहे हैं सर. हाँ, वो ही वाज थ्रेटनिंग हिम ये तेरी लाइफ का आखिरी मैच होगा. एंड ही सेड कि अगर आखिरी मैच है तो मैं भागूंगा वैसे ही जब आखिरी मैच में भागते हैं. बस. यस. So, really very nice. So, Sir King stated that debris slope at the base of the cliff do not move upward, so that they neither, ये क्या चीज है ये? Aggrade it nor erode it. This shows that there is equilibrium in the supply and removal of the debris on the slope that led to summit of the hill remain constant. Good. So already I've shown this thing in this figure, right? Such concept of equilibrium in the supply and removal of debris is also used by Sir Wood in his theory. According to Sir Wood, on the constant slope formed by weathered material comes from the free face, that is total amount of debris is removed by the stream, so that the length of the constant slope remains same. And again, due to parallel retreat of the scarp and rectilinear increase, so due to parallel retreat of scarp and rectilinear element, the length of the concave slope pediment increases, which is formed at the base of the slope. Due to increase in length of pediment towards upper portion, free face disappears. ठीक है, ये मतलब अच्छे से काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया. आप इसको कंसाइज कर सकते हो. इफ यू आर रनिंग शॉर्ट आउट ऑफ वर्ड ना, इन दैट केस यू कैन कंसाइज दिस थिंग, राइट? थोड़ा सा इसको कंसाइज करने की कोशिश करना है यहाँ पर. देन इन दिस वे continuous movement in the pediment, its gradation ends, but soon it is regarded, it is, ये क्या चीज है, and its angle is declined. और यहाँ पर फिर से थोड़ा सा फ्लो ब्रेक हो रहा है. In this way, continuous movement in the pediments, its gradation ends, but soon it is regarded and its angle is declined. ये this part is not clear. This part is not clear. इसको थोड़ा सा जो है simple way में इसको explain करने की कोशिश करो थोड़ा सा. Okay. Lastly, due to the increase in the length of pediment and disappearance of scarp, concave slope extensive erosion surface is formed, which is known as pediplane. देखो किंग ने मॉडल 1948 में दिया था. ओके,
एंड ये जो था बेसिकली इनका मॉडल था लैंडस्केप इवोल्यूशन का. This was the model related to landscape evolution, and he was basically observing the areas, semi-arid and semi-arid areas of South Africa. तो साउथ अफ्रीका के एरिया पे इन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च किया था. एंड हियर यहाँ पे इन्होंने बेसिकली क्या करा था कि डेविस और पैंक दोनों के मॉडल, क्योंकि दोनों में यूथ मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज दोनों की बात की गई थी, दोनों को इन्होंने यहाँ पे क्लब कर दिया. ठीक है, दोनों को यहाँ पे इन्होंने क्लब कर दिया. और जो इसके बेसिकली जो पार्ट थे वो ये था कि एक था वैक्सिंग स्लोप था, एक फ्री फेस था, एक डेब्रिस स्लोप था और एक था वैनिंग स्लोप था. वैनिंग WANING करके, राइट. तो बहुत सिंपल सा मॉडल था यहाँ पर, और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मतलब करने की जरूरत नहीं है. डायग्राम्स थोड़े से मैं डाल दो, लेकिन अगर कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो तो मेक श्योर कि उसका मीनिंग एकदम क्लियर जा रहा है, राइट. सर किंग envisaged the parallel retreat of a single free face slope unit having a broad concave pediment sloping at an angle of 6 to 7 degree or less at its base. Good. ये लग रहा है क्लियर एकदम. कहीं कहीं पे मुझे लग रहा है वही जो थोड़ा बता रहे थे ना हिंदी मीडियम वाला, तो कहीं कहीं पे वही चीज थोड़ी सी आपको परेशान करती है, लेकिन धीरे धीरे लेकिन परेशान मत होना. देखो मेरा काम है कि मैं आपको जहाँ जहाँ गलतियां कर रहे हो या जहाँ जहाँ पे चीजें दिक्कत कर सकती है वो मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, राइट. सो दैट्स माय जॉब, और इसीलिए आपने प्रोग्राम ज्वाइन भी किया है, राइट. सो आप इन चीजों को थोड़ा और देखो. धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि डेली बेसिस पर बहुत चीजों को फॉलो कर रहे हो, बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट आप में आ रहा है. इतनी तेजी से इंप्रूवमेंट आता नहीं है लोगों में. So gradually over time, pediment coalesced to form paddy plain, and this model of landscape development is therefore called paddyplanation. ठीक. So this was the paddyplanation concept. Next आते हैं. Describe the basket of X topography. So ये बहुत straight away question था यहाँ पर. So basket of X topography is the topography of drumlins, which are generally found in clusters. So drumlins are formed by the deposition of glaciers in a hill plain. These are oval सर टिल elongated. प्लेन है, सर टिल प्लेन है ये. कौन सा? टिल प्लेन है, टिल प्लेन है. एक मिनट हिल प्लेन नहीं, ये टिल प्लेन है. अच्छा ठीक है, हिल प्लेन. अच्छा टिल प्लेन, सॉरी, टिल प्लेन, ठीक है. So these are oval elongated hummocks which are composed of boulder clay. Its shape is like an inverted boat and has asymmetrical slopes. The slope is little steeper and rough in the direction of ice flow, while leeward side slope is gentle. Good. They are low hills varying from 7 to 40-meter height and 8 to 32-kilometer long. Very good. Diagrams are awesome. Very good. So such type of topography generally found in northern islands, glaciated plains around the Great Lakes in North America. ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, राइट. दिस वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और क्लियर भी चीज है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लगती है, राइट. यस सर. ये बेसिकली क्या है, दे अपीयर्स लाइक एन आइलैंड. ये प्लेन एरियाज में जो जो आपकी जो टिल प्लेन्स हैं ग्लेशियर्स में, तो ग्लेशियर रीजन्स में बेसिकली ये आइलैंड्स की तरह दिखाई देंगे हमें ये. ओके, एलिवेटेड पोर्शन है थोड़ा सा ये. नाउ नेक्स्ट करते हैं जल्दी से. प्रेजेंट डे लैंडफॉर्म्स वर मोर complexity than simplicity elucidate. 20 marks question. So present day landforms on Earth are a product of multiple factors, and their origin and evolution is studied by multiple disciplines as well. So in the million years of its existence, the Earth has been in continuous movement. The plate tectonic have led to formation of new geological structure as well as rejuvenation of old landforms. Sometimes the existing landforms were also wiped out by it. वेरी गुड. तो ये होता है इस तरह के जो आप चीजें लिखते हो ना, तो ये चीजें हैं कि
बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड समझने वाली चीज है। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा लगा, राइट। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, जैसे पहले वाले में थोड़ा सा कहीं कहीं पे कुछ चीजें अनक्लियर थी। सेकंड वाला बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी एकदम क्लियर है ये। एंड ये क्वेश्चन में भी स्टार्टिंग वाला पार्ट तो भी काफी अच्छा है, बाकी देखते हैं आगे। So convergence of Indian plate with Eurasian plate led to the formation of Himalayas. A thin layer, a thin क्या है ये? Led. and this led to अच्छा, and this led to landform formation of most of the Indian subcontinent, including China some part. अब यहाँ पे आपने बनाया है, ठीक है, गुड है, मतलब अच्छा है ये। लेकिन अब मेरे ख्याल से लॉकडाउन खत्म हो चुका है या काफी रिलैक्सेशन होगा, तो थोड़ा सा कलरफुल करो इसको। ओके, अगर मतलब हाँ, कौन कौन सा कलर यूज कर सकते हैं सर? देखो ऑरेंज कलर यूज करो मैग्मा के लिए। ओके ऑरेंज कलर मैग्मा के लिए यूज करना। सर, एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ एग्जाम में भी यूज कर सकते हाँ, हैं क्या एग्जाम में ऑरेंज कर सकते कलर? हैं। ब्लू कलर कहीं पे वाटर दिखाने के लिए, और ब्राउन कलर को आप प्लेट्स को शो करने के लिए, ब्राउन कलर को आप प्लेट्स को शो करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। और ये ऑरेंज ब्लू और ब्राउन। हाँ, ऑरेंज ब्लू ब्राउन, राइट। अगर मान लो तुम्हारे पास पेंसिल कलर नहीं भी है, या फिर लग रहा है कि पेंसिल कलर, तो इसकी जगह आप वो ले लो जेल पेन, ऑरेंज कलर का, ब्लू कलर का और ब्राउन कलर का। तो होता क्या है बेसिकली कि मैंने आपको बताया ना कि जो आपकी आंसर कॉपी है, ये आंसर कॉपी भाई ऑन एन एवरेज 3000 to 4000 स्टूडेंट्स होते हैं, इसके बीच में लोग ले रहे हैं ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल, राइट। अब इतनी लोगों की कॉपीज जो है, जब ये बंडल्स बनते हैं, तो ये बंडल्स एक जगह से दूसरी जगह कितनी बार फेंके जाते हैं। एंड फिर होता क्या है साथ के साथ की कॉपी सिर्फ सिंपल आपने पेंसिल से डायग्राम बनाया हुआ, तो कॉपीज के बीच में मतलब कहते हैं रब होते होते काफी ब्लर्ड हो जाती है ये। 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद जब चेक होगी तो काफी ज्यादा तब तक इसकी क्वालिटी खराब हो चुकी होती है। सो इट्स बेटर कि आप पेन्स को ही यूज करो। और हो सकता है ये, जैसा ऑलरेडी आपने पेन से करा है ये सारी चीजें, और ये डायग्राम भी अच्छा है, ये नहीं कह रहा मैं कि खराब है या कुछ इसमें कमी है, कुछ और अच्छा कैसे बन सकता है मैं उसकी बात करूँ। इज ऑलवेज अ स्कोप। पहले आप पेंसिल से डायग्राम बनाया देता, मैं पेन से डायग्राम बनाओ। अब पेन से डायग्राम बनाना तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें और क्या चीज ऐड कर सकते हो, तो ये सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ओझा सर, उनका कभी देखे हैं सर? कोई मतलब वीडियो तो देखे ही होंगे। ओझा सर के इलाहाबाद मैंने यूनिवर्सिटी, सुना है काफी। हाँ बताओ। यस सर। उनका जो मतलब जो भी होता है ना प्रेजेंटेशन चाहे डायग्राम, इतना नीट एंड क्लीन होता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। लगता है कंप्यूटराइज्ड है, ऐसे मतलब हाथ से ऐसे हाँ, बनाते हैं। उनके वाइट, बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ बात आपको, वाइट और वो शायद बोर्ड पे जो वो लिखते हैं वो यूपीएससी लिखा का है। भी यूपीएससी का भी एग्जाम नहीं, मतलब कॉपी चेक करते हैं शायद वो। हाँ हाँ हाँ। तो ओझा सर व्हाइट बोर्ड पे भी जो लिखते थे, वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने टाइप किया हो, वहां पर प्रिंट किया हो, ठीक है। और डायग्राम्स देखो, जो यस सर, जोग्राफर, यस सर। जो हार्डकोर जोग्राफर होता है, आप इसी से समझो। अब ओझा सर की आपने बात करें, उनके आपने डायग्राम देखे कितने नीट एंड क्लीन, और कितने यस सर, देखिए क्या बहुत होता है नीट ना एंड कि जो क्लीन। जो एग्जामिनर है, भाई दैट पर्सन हैज गिवन हिज एंटायर लाइफ फॉर दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल बी इन लव विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कोई एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जिस पर्सन ने उस सब्जेक्ट को पूरी अपनी लाइफ दे दी है, तो मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट से अटैचमेंट है, राइट। और उसमें कोई चीज आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके उसको दिखा रहे हो, सब चीज कर रहे हो, और उसको लग रहा है कि यार मेरे पास कोई स्कोप ही नहीं है इसको नंबर कम देने का या नंबर कहीं काटने का, तो ऑब्वियसली आपको नंबर अच्छा दे देंगे, ठीक है। I've seen some copies of candidates, एंड उनका बस ये था कि भाई उनको आईपीएस चाहिए था। दे वर लुकिंग फॉर आईपीएस। उनका मतलब पर्पज सिर्फ आईपीएस से ही था, और कोई था ही नहीं लेने देना। एंड उनको ये था कि सर हमें तो इतने लाने हैं ज्योग्राफी में, हमारे यहाँ से ज्योग्राफी से मैं इतना खींच लूंगा आराम से। और वो बंदे ऐसे थे कि मतलब अगर उनके आंसर कॉपी कभी मेरे को मिल गई कोई एक आधी, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना नीट एंड क्लीन और कितना इतना अच्छा डायग्राम। और ये डायग्राम, वो जो आंसर कॉपी है ना, वो 6 साल पुरानी है, लेकिन आज भी अगर आप देखोगे ना, तो आपको देखने लगेगा कि सर ये तो अभी किसी ने कल ही लिखा हुआ आंसर, राइट। वो मेरे कहीं पे किसी फाइल में दबी हुई है कहीं पर, अभी मिलती है, मैं आपको दिखाऊंगा वो आंसर कॉपी। ओके, तो यस, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एजेंट्स ऑफ इरोजन लाइक विंड, ये क्या लिखा है, चिपिंग अवे, ये क्या चीज है? यस सर, चिपिंग अवे। चिपिंग अवे टू एक्टिविटी ऑफ
wind for over a million years, and it's coupled by other factors that led to landform formation and evolution. This led us to a very complex study of multiple factors shaping up landforms. ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड चीज आप यूज कर सकते हो कि on any landform at any point of time, both endogenetic forces and exogenetic forces are acting. Okay, and there are multiple endogenic. While for endogenic forces, there are plate movements which are responsible for endogenic forces, but for exogenetic forces, there are multiple factors which are affecting, which are acting on a landform. ठीक है, कोई लैंडफॉर्म है उसको हो सकता है विंड इरोजन भी एक्ट हो रहा हो, कोस्टल रीजन में तो मे भी हो सकता है मैरीन इरोजन भी एक्ट कर रहा हो, बारिश होगी तो उसका रेनफॉल का भी जो है इरोजन होगा, राइट। तो इस तरह की चीज आप यहाँ पे और थोड़े से स्टैंडर्ड डेफिनेशंस भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। द क्लाइमेट ऑफ अर्थ टू हैज गॉन थ्रू significant changes which shaped up landform in its own way. Glaciers were much more significant during the Pleistocene. The world climates have not always, Pleistocene period लिख देना, have not always been distributed as they now are, and thus regions that are now humid have been deserts and areas now deserts have been humid. तो इसका कोट कर देना continental drift theory, the same as was stated by Wagner in his theory, right? The intensity of various geological process changes with geological time, but there is no reason to believe that streams did not cut valleys in the past as they do now, or that the more numerous and extensive valley glaciers of the Pleistocene period behaved any differently from existing glaciers. तो यहाँ पे आप रिवर्स के कुछ एग्जांपल लिख देना, ओके, खास तौर पे एंटीसीडेंट रिवर्स के कुछ एग्जांपल यहाँ पे डालो, ठीक है। सम एग्जांपल्स ISVT के हाँ हाँ। So Pleistocene ice age saw advancement of huge glaciers to almost all of North Europe, which led to erosion of all the landforms there. When the glaciers retreated, they led to further deposition and erosion, which gave the landform another layer and make complexity. यहाँ पे डायग्राम्स डाल सकते थे आप, मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन में डायग्राम्स की कंपैरेटिवली कमी है, और इसको आप एक रूल बना लो कि आपके हर पेज में मिनिमम एक डायग्राम होना चाहिए। अब आप पूछोगे सर यहाँ कैसे बनाऊं डायग्राम, जब मैं बात कर रहा हूं आपसे एंटीसीडेंट रिवर्स की, तो रिवर्स मेक सर्टेन टाइप्स ऑफ वैली, एक हो गई आपकी वी शेप वैली, एक हो गई आपकी यू शेप वैली, और जो एंटीसीडेंट रिवर्स होती है दे मेक आई शेप वैली, वर्टिकल कट कर दिए हैं। और आई शेप वैली क्या है, गॉर्ज। जैसे इंडस की अगर मैं बात करूंगा तो वो भी एक एंटीसीडेंट रिवर है, ब्रह्मपुत्र भी एंटीसीडेंट रिवर है, तो ये कई जगह पे क्या बना रही है, गॉर्ज बना रही है। गॉर्ज क्या है, वर्टिकल वैलीज, एकदम स्ट्रेट वैलीज है ऐसे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ डायग्राम्स यहाँ पे डालो जरा। ये एक रूल होना चाहिए आपका एकदम कि भाई मेरी हर आंसर कॉपी पे हर पेज पे, खास तौर पर जहाँ पे स्कोप है वहां पे एक डायग्राम मुझे जरूर डालना है, ठीक है। The structure of landforms as well is different to one another, even though सर कभी कभी ऐसा होता है ना, हाँ लिखने के चक्कर में डायग्राम का ध्यान ही नहीं रहता है, हाँ, वो बात ठीक है, मतलब वो बात ठीक है, लिखते लिखते मतलब ध्यान हाँ, नहीं रहता लेकिन एकदम ये से। मैंने इसको इसलिए बोला है कि मेक दिस अ गोल्डन रूल, क्योंकि ये सीरियसली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको, ठीक है। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। तो डायग्राम तो मतलब कोशिश हमेशा करना कि डायग्राम आप हर पेज पर, बाकी के जो भी कैंडिडेट्स हैं, मतलब ये चीज जो ध्यान रखना कि ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आपका पेपर है तो आपको हर पेपर पेज पे एक डायग्राम, कोई एक मैप ऐसा डालना है। अभी तो देखो ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो प्योर ज्योग्राफिकल टॉपिक्स है। अभी ऑप्शनल में क्या है ना, बहुत ज्यादा जनरलाइज क्वेश्चन भी आते हैं जिनको आप देखोगे तो आपको देखने में लगेगा कि ये तो जीएस जैसा क्वेश्चन, राइट। और ये जो जीएस टाइप के जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट को ज्यादा चैलेंज पोज करते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे आपको वो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक देनी है,
अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आ गया, डेजर्टिफिकेशन पे क्वेश्चन आ गया, इनफैक्ट नेक्सल्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब इनको कैसे आप जोग्राफिकल एंगल दोगे, किस तरीके से जोग्राफिकल फ्लेवर इसको दोगे, वो भी ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे डायग्राम और मैप से आपको हेल्प करेंगे। क्लियर है ये? So, Yes, sir. Yes, sir. the term structure not applied in narrow sense of such as rock features as fold, fault, and conformities, but it includes all those ways in which the earth materials out of which landforms are carved differ from one another in their physical and chemical attribute. अब इतने पोर्शन में दोबारा से ना कनेक्टिविटी का इशू आ गया, यानी कि जो आप लिख रहे हो मैं समझ गया हूँ कि जो आज के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो अलग अलग प्रोसेस से कार्व्ड आउट हुए हैं, अलग अलग इरोजनल एक्टिविटीज से, लेकिन ये चीज ना आपके ये पैरा आखिरी का जो पोर्शन है ये इसको क्लियर नहीं कर पा रहा है, ये इसको क्लियर नहीं कर पा रहा है। It includes such phenomena as rock attitude. Yes, sir. Yes, sir. कैसे मतलब? Yes, sir. Rock attitude. The presence absence of joints, bedding plane, rock massiveness, physical hardness, mineral constituents, chemical alterations, permeability, हाइपर परमेबिलिटी। एटीट्यूड की जगह आप सिंपल लिख लो रॉक स्ट्रक्चर या रॉक कंपोजिशन करके कुछ ऐसा, राइट? ये इसका मतलब जो है मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ठीक से। देन टू अ लार्ज डिग्री द अर्थ सरफेस पोजेसेस relief because of geomorphic processes which are operating at different rate। अब देखो, to a large degree the earth surface possesses relief because of, यहाँ पे ऑफ लिखना है, geomorphic processes which are operating at different rate। ठीक? The main reason behind this is that the rocks of earth crust vary in their lithology and structure, and hence offer varying degree of resistance to the gradational process। Some of these variations are very notable while others are very minute। Good, ये clear है। Then, except for regions of very recent diastrophism, it's actually safe to assume that area which are topographically high are underlain by hard rocks and those are low by weak rocks। Difference in rock composition and structure are reflected not only in regional geomorphic variability but in the local topography as well। ठीक है? Then much of the minor topographic details or what we may call the microtopography is related to rock variation and often too minute in nature to be readily detectable। This all interplay of multiple factors led to complexity of landforms as we see today। So this answer is good, okay, but still I would expect that you should rewrite this answer। Why? क्योंकि आपके स्टैंडर्ड अब काफी ऊपर हो चुके हैं, या आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा होगी। सो प्लीज ड्रॉ सम डायग्राम्स। पहली चीज है डायग्राम। सेकंड चीज है प्लीज मेंटेन कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी आपका एक प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, और ये कनेक्टिविटी अगर इशू यहाँ पर है तो ये कनेक्टिविटी एसए के पेपर में और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है? अगर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम यहाँ पे इतनी आ रही है तो सोचो एसए में कितनी ज्यादा आएगी। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Then
Explain with example as to how channel dynamics has been responsible for the development of alluvial fans and cones. Yes. So channel dynamic is a cumulative function of channel gradient, volume of water in the channel, and speed of the water. Very good. Then the channel dynamics help us in knowing the carrying capacity of the channel. The carrying capacity is basically amount of sediment a river or a stream can carry along with it. वेरी गुड। देखो ये होती है चीज है कि मतलब आपने जो चीज बोला, जो जो भी चीज आप लिख रहे हो, इमीडिएटली उससे क्लैरिटी मिल रही है। गुड। देन द चैनल डायनेमिक्स इज अफेक्टेड बाय decrease in channel gradient, widening of valleys, decrease in volume and discharge of water, obstruction in channel, and decrease in velocity. Very nice. तो यहाँ पे डायग्राम दे दिया आपने। डायग्राम को ना किसी तरह से कोशिश क्या करो कि पेज के फर्स्ट हाफ पेज पे ही ऊपर आ जाए, कहीं यहाँ पर किसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे स्कोप बन नहीं रहा है इसका, क्योंकि एलयूपीएल फैन की बात यहाँ पे आ रही है। तो कोई दूसरा डायग्राम यहाँ पे रिवर का एक बना दो, सिंपल डायग्राम जो होता है, जैसे आपने मियांडर दिखा दिया, याजू स्ट्रीम दिखा दी, लीविस दिखा दिया, ब्लफ दिखा दिया, एक पूरा डायग्राम का एक पूरा रिवर का प्रोफाइल यहाँ बना दो ऐसे। ठीक है, और फिर लिखना चालू करो यहाँ पर, बाकी आगे फैंस और ये सब तो आ ही जाएगा। Then alluvial fans and cones are formed in the base foothill where there is abrupt drop in the channel gradient. Very good. And diagrams are good. These are pretty good diagrams. Then the carrying capacity of the stream decreases significantly at the base of foothills due to drop in channel gradient and lower velocity of the stream. This in turn results in the deposition of sediments. बहुत बढ़िया। Which earlier being carried by a stream, there is sorting of depositional sediments in the fans and cones. The size of the material decreases further from apex of the apex brachioradial towards the hills of the fans towards their outer margin. Then figure 1.2 shows that differences in gradient of the fans and cones and a longer debris and a larger debris in the cones. The slope of the cones are much steeper than those of fans. Large alluvial fans have an average slope of about a degree, whereas smaller alluvial fans is characterized by gentle to moderate slope of about 5 degree. Very good. ये वाला आंसर काफी अच्छा लगा मुझे। Cones also have most of debris collected at the base of the foothills, and sediments is closer to that of the fans. The fans, on the other hand, have finer sediments which spread out in an arcuate or semicircular shape. So ये चीज थोड़ा एडअप कर देना कि स्ट्रीम जो है, जो आपने पढ़ा होगा ना, स्ट्रीम डिसअपियर होती है यहाँ पर। वो सब चीज थोड़ा यहाँ पे मेंशन करना उसको। There is gradual growth and development of fans in two ways. They grow spatially as the stream deposits more and more sediments. Then they grow in height as well. If the gradient of the fan is increased more than 5 degree, it comes to be classified as cone. ठीक है, तो फैन व कोन में अपने डिफरेंस दिखा दिया। अब ये जो एग्जांपल है ये है लोकलाइज्ड एग्जांपल्स, और ये एग्जांपल्स आपको कोट करने थे। लाइक द चंडीगढ़ दून alluvial fans are present in the foothills of the Shivaliks. They are present at Balad, Kiratpur and ये कौन सा बाणसागर, बानासर, ठीक है। Several paleo alluvial fans are found in Doon Valley of Uttarakhand. The Kosi River in Nepal and northern Bihar has also formed alluvial fans. ठीक है, ये वाला पार्ट अच्छा था। This part was good. और डायग्राम्स भी ओके है, डायग्राम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायग्राम्स भी ओके। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और
लास्ट क्वेश्चन, दे आर क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, मतलब जो कंडीशंस हैं तो ये हमने स्टैंडर्ड्स हाई रखे हुए हैं, राइट? तो उन कंडीशंस को, उन स्टैंडर्ड्स को ये काफी सेटिस्फाई कर रही है। थर्ड वाला जो आंसर है, कंटेंट वाइज इट इज वेरी गुड, ठीक है, कंटेंट वाइज इट इज वेरी गुड। मेरा काम ये है कि इसको गुड को और वेरी गुड कैसे करना है, ठीक है। मेरा काम ये है कि मैं आपको सजेस्ट करूं कि जो गुड है उसको वेरी गुड कैसे किया जाए, जो वेरी गुड है उसको एक्सीलेंट कैसे किया जा सकता है, राइट? यस सर, यस। ठीक है, तो ये हम इसको रखते हैं यहाँ पर।